بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب مرحوم جو ہیں، ان کے حوالے سے میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں، اور شاید جب آپ اس کو سن رہے ہوں گے تو ان کی تدفین ہو چکی ہوگی یا اس وقت ہونے والی ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کچھ ریومرز آ رہی ہیں، کچھ افواہیں آ رہی ہیں، اور کچھ جو خونی لبرلز ہیں وہ عجیب و غریب قسم کا موقف دے رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ یعنی میں گل علی اسماعیل ہوں یا جو باہر ملک جا کے پاکستان کے بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں، چاہے وہ گل بخاری ہو، چاہے وہ گرایا ہو، یا اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں، میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا، فضول قسم کے لوگ ہیں، نہ کوئی ان کی بات سنتا ہے اور نہ کوئی ان کی بات میں دلچسپی لیتا ہے، اور پاکستان کے اندر ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے کچھ ایکٹیوسٹ اور کچھ ان کے بہت چہیتے لوگ، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھارتی ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ عجیب و غریب قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے نام ہیں، یہ غیر ضروری قسم کے لوگ ہیں، تو ان کا نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کچھ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہے۔ پروپیگنڈا صاف صاف میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو ان کا پروپیگنڈا ہے، پھر ہم ان کے پروپیگنڈا کا پول بھی کھول دیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب، علامہ خادم حسین رضوی صاحب مرحوم، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فساد پھیلا رہے تھے، اور وہ قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ مل کر فساد پھیلا رہے تھے، اور پھر انہوں نے جب ان کا پول کھولنے کی بات کی تو پھر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ وہ رضا الہی سے ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ طبعی نہیں ہے، اور وہ بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال نہیں ہوا بلکہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ باتیں اب خونی لبرلز کر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے اوپر۔ یہ کوئی ایسا موقع ضائع نہیں کرتے جہاں پہ یہ پاکستان کے اندر فساد پھیلا سکیں، جہاں پہ یہ پاکستان کے اندر انارکی پھیلا سکیں، جہاں پہ یہ پاکستان کے حالات کو خراب کر سکیں۔ ایون ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جیسے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں ایک عالم دین کے انتقال کے اوپر۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ علامہ خادم حسین رضوی تھے کون۔ اٹک میں یہ پیدا ہوئے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور 2017 میں یہ اچانک منظر عام پہ آتے ہیں ناموس رسالت کے لیے، جب اس دور میں ایک متنازع قانون بن رہا تھا، اور وہ متنازع قانون یہودیوں کی اور قادیانیوں کی خواہش کے اوپر بن رہا تھا، تو اس وقت ایک آدمی کھڑا ہو گیا جس کی ٹانگیں بھی نہیں تھیں، یعنی ایک معذور شخص کھڑا ہو گیا اور آ کے سامنے چٹان بن کے، دیوار بن کے کھڑا ہو گیا کہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا، 2017 چل رہا تھا، اور اس وقت انہوں نے مجبور کر دیا اس دور میں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر، اور وہ سارا معاملہ ختم کیا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے مطالبات تسلیم کیے گئے، اس کے لیے ان کو فیض آباد میں دھرنا دینا پڑا، اور پھر وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ پہلی مرتبہ منظر عام پہ آئے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے، ان کے طریقہ کار سے بہت سارے لوگ اختلاف کرتے تھے، یعنی بعض اوقات وہ ایسی زبان استعمال کرتے تھے جو تلخ تھی، تھوڑی سخت تھی، لیکن یہ ان کی گھنٹوں کی تقریر کے اندر سے چند جملے ہوا کرتے تھے۔ یعنی پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا بڑا سیاںا ہے، لبرلز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب نے مثال کے طور پہ اگر 2 گھنٹے کی تقریر کی تو اس میں اگر ایک لوز جملہ ہے یا کسی جگہ پہ انہوں نے غلط لفظ استعمال کیا تو اس کو نکالیں گے اور نکال کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے تھے، اور لیکن وہ جملے تو ان کے اپنے منہ سے نکلتے تھے علامہ صاحب کے۔ اس پہ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت کے لیے پاکستان میں جو آواز سب سے بلند ہوتی تھی اور سب سے پہلے کھڑی ہوتی تھی وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ہوتی تھی۔ یہ نہ صرف ایک عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، شیخ الحدیث تھے، بلکہ ان کو اقبالیات کے اوپر بہت عبور تھا۔ میری نظر میں پاکستان میں جو اس وقت جتنے علماء موجود ہیں ان میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے اوپر کسی کو اتنا عبور نہیں تھا جتنا خادم حسین رضوی صاحب کو تھا۔ ایک بڑے نڈر آدمی تھے، بے باک آدمی تھے، بڑا کھل کے بات کرتے تھے، جہاں ان کو لگا مجھے ایجنسیوں کو بارے میں بات کرنی ہے کھل کے کی، جہاں لگا اداروں کے بات کرنی ہے کھل کر کی، جہاں لگا پولیس کے اوپر بات کرنی ہے کھل کر کی، جہاں حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے کھل کر کیا۔ کبھی کسی سے ہم نے ان کو ڈرے ہوئے یا گھبرائے ہوئے نہیں دیکھا، مشکل حالات کے باوجود۔ عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو یہ دوسری مرتبہ فیض آباد کے لیے نکلے، اور تب انہوں نے دوبارہ پلان کیا تھا دھرنا دینے کا۔ یہ جب آسیہ مسیح کا فیصلہ آیا تھا عدالت کا، تو اس کے بعد ایک بہت گرینڈ آپریشن ہوا تھا ان کی جماعت کے اوپر، بہت گرینڈ آپریشن ہوا تھا۔ ان کے ہزاروں کارکن
पूरे पंजाब से और पाकिस्तान भर से गिरफ्तार कर लिए गए थे तहरीक लब्बैक के, और वो कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे कारकुनों ने लिख कर दिया कि हमारा इस तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर उनको छोड़ते थे। तो इस किस्म के सख्त हालात इनकी तहरीक ने देखे। लेकिन उस वक्त भी अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कुछ कहना था फौज के बारे में, एजेंसियों के बारे में, तो वो उस वक्त कह सकते थे। उससे बुरा वक्त तो इनके लिए कोई नहीं था ना, उससे बुरा वक्त तो कोई नहीं था। इनके सारे लोग गिरफ्तार हो रहे थे, हर जगह छापे पड़ रहे थे, इनके अपने घर पे छापे पड़ रहे थे, और उसके अंदर पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट मौजूद थी। तो अगर इनको ऐसा कुछ कहना था, ये उस वक्त भी कह सकते थे। तो एक मुतनाज़ स्टेटमेंट को जवाब बनाकर अब ये खूनी लिबरल्स कह रहे हैं कि अल्लामा खादिम रिजवी कुछ बताने जा रहे थे जुम्मे वाले दिन, इसलिए जुमेरात वाले दिन उनका इंतकाल हो गया, और इसको एक कत्ल करार दे रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये सारा दिन बैठ के नफरत फैलाते हैं, और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को कह रहे हैं कि वो हेट स्पीच करते थे, वो नफरत फैलाते थे। और भाई वो तो मोहब्बत के लिए आते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए। वो तो आते थे, आके वहाँ बैठ जाते थे और ये कहते थे कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होने दूंगा, और जो गुस्ताखी करेगा उसकी सज़ा के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। ये उनकी आवाज़ थी। अब एक आदमी आई मोहब्बत का पैगाम लेकर रहा है, और उसके चंद जुमले अगर तल्ख हैं, तो आप तो सारा दिन आग लगाते हैं। आप तो सारा दिन कोशिश करते हैं कि कभी फौज की हुकूमत से लड़ाई हो जाए, कभी हुकूमत की अपोजिशन से लड़ाई हो जाए, कभी अवाम की फौज से लड़ाई हो जाए, कभी पाकिस्तान की अमेरिका से लड़ाई हो जाए, कभी इंडिया जो है उसकी पाकिस्तान। सारा दिन तीली पकड़ के बैठे हैं और आग लगाते हैं, और अपने आप को कह रहे हैं कि हम बड़े शरीफ लोग हैं, हम हेट स्पीच नहीं करते। इन सारे लिबरल्स को पट्टा डाला हुआ था खादिम हुसैन रिजवी साहब ने। इसलिए आज ये जश्न मना रहे हैं, इसलिए आज ये खुश हो रहे हैं। वो एक ज़बरदस्त आवाज़ थी जिसने नामूस रसालत के लिए हमेशा सबसे पहले आवाज़ बुलंद की है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान के बेशुमार रवायती मौलवी, बहुत सारे ऐसे मौलवी जो बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन सब की मकबूलियत को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था बहुत थोड़े अरसे में, 3 सालों के अंदर। द रीज़न वाज कि जब वो सारे के सारे सो रहे थे, जब वो सारे के सारे आका की नमूस के बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने माजूर होने के बावजूद ये बेड़ा उठाया, और ना सिर्फ बेड़ा उठाया बल्कि अपने आप को साबित कदम भी रखा। उनके लिए बहुत मुश्किलात आई, पुलिस ने गिरफ्तार किया, एजेंसीज उनके पीछे पड़ गई, हुकूमत उनके पीछे पड़ गई, लॉ इन्फोर्समेंट ने उनको दबा लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं, डटे रहे। अभी भी उन्होंने एक मुज़ाकरात किए थोड़े दिन पहले हुकूमत के साथ, जब वो इस्लामाबाद गए, उन्होंने फैज़ाबाद में बिल्कुल मुख्तसर नौयत का एक धरना था उनका, उनके मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात कामयाब हुए, उनके मुतालबात माने जा रहे थे, उनको ये श्योरिटी करवाई गई, उसके बाद वो वापस आए मुतालबात मनवा के। तो खादिम हुसैन रिजवी साहब एक मजबूत शख्सियत के मालिक थे, उनका किरदार बहुत बुलंद था इन लोगों से, जो आज उनके इस दुनिया से जाने के बाद दिली दिल में ना सिर्फ खुश हो रहे हैं, बल्कि कई लोग तो खुल के खुशी बयान भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसके अंदर भी एक साजिश ढूंढ रहे हैं। यानी अगर मारना हो अपने मुखालिफिन को, और यही पाकिस्तान की फ़ौज के पास आसान हल हो, तो क्या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वाहिद ख़तरनाक आदमी थे जिनको मारना ज़रूरी था? इधर तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना जहर उगलते हैं, जो रोज़ाना पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी में, खूनी लिबरल्स के अंदर हैं, पाकिस्तान में दंदनाते फिरते हैं, भारत से फंडिंग लेते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो नस्लों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ हमें दीन से दूर ले जाते हैं, हमें हमारी पाकिस्तानियत से दूर ले जाते हैं, हमारे दो कौमी नज़रिया से दूर ले जाते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर यही हल है कि एजेंसीज को ये लगता है या इदारों को ये लगता है कि जो उनके खिलाफ बोले या बोलने की बात करे उसको मार दो, तो फिर इन सबको तो कब का मार दिया होता। ये तो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से तो ऐसी कोई चीज मंसूब भी नहीं। उनका एक स्टेटमेंट है जिसके बारे में कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि फिर मुझे किसके कहने पे धरने पे गया था। तो आप उससे गैस कर रहे हैं कि वो फौज के कहने पे गए थे, और ये अगर खादिम हुसैन रिजवी कह देंगे तो इससे कोई बहुत बड़ा भौंचार आ जाएगा। अव्वल तो उन्होंने कहा नहीं, और अगर वो कह भी देते तो इससे बहुत ज्यादा सख्त जुमले, इससे बहुत ज्यादा खौफनाक बातें नवाज शरीफ कर चुके हैं, मरियम नवाज कर चुकी हैं, मौलाना आपके फजल रहमान साहब कर चुके हैं।
फजल रहमान साहब की पार्टी के दीगर लोग कर चुके हैं। इससे ज़्यादा खौफनाक बातें पीपल्स पार्टी वाले कर चुके हैं। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजा चुके हैं। अल्ताफ़ हुसैन क्या कुछ कह चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार जो लिबरल्स हैं, जिनके नाम लेना भी मुनासिब नहीं है, वो सारे रोज़ाना ऐसी फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। तो अगर बंदे मारना ये हल था तो यहाँ तो बेशुमार बंदे हैं जो मार देने चाहिए थे, और वो मार देते। मेरे ख्याल में ये फ़ौज के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर एक एलिगेशन है, और ये इस वक्त में लगाया जा रहा है, इस वक्त लगाया जा रहा है जब हालात बड़े नाजुक हैं। जब अल्लामा खादम हुसैन रिजवी ने एक मुतालबा किया और उस मुतालबे के फ़ौरन बाद जब वो वापस पहुंचे तो उनका इंतकाल हो गया। जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उनको कोविड था और वो बुखार में मुब्तला थे, और उनको बुखार बहुत ज़्यादा था। और यह मकबूल जान साहब का रब्ता हुआ था। उन्होंने ये कहा कि उनके बेटे ने मुझे बताया कि उनके वालिद बीमार हैं, इसलिए वो आपके टेलीविज़न पे बीपर आपके प्रोग्राम में नहीं दे सकते, लेकिन वो सेहतयाब होंगे तो वो ज़रूर देंगे। और उनकी जगह पे उन्होंने फिर अपनी पार्टी का दूसरा बंदा दिया कि वो आपके प्रोग्राम में बात कर लेगा। तो ये तो एक गवाही भी आ गई कि वो बीमार थे, उनकी फैमिली कह रही है बीमार थे। बीमार होने की वजह से बुखार था, बुखार जो है उनका बढ़ता चला गया, उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। फैमिली ये कह रही है, उनके करीबी साथी ये कह रहे हैं। ये जो खूनी लिबरल्स हैं ये कुछ और कह रहे हैं, और ये क्यों कह रहे हैं इसका मतलब समझिए। ये मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, ये लोगों के जज्बात को भड़काना चाहते हैं। ये ना सिर्फ इतने बड़े आलम दीन के इंतकाल के ऊपर, खुद तो इनको दीन का पता नहीं है, और सिर्फ उनके चंद जुमलों की वजह से उनको मुतनाज़े बनाने पे तुले हुए हैं। इतने बड़े आलम दीन के इंतकाल के ऊपर ये बजाय अफसोस करने के उसके ऊपर मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं, बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर उनकी मौत को भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, मुतनाज़े बना रहे हैं। एहसन इकबाल ने मिसाल के तौर पे ताज़ियत की, अफसोस का पैगाम किया, तो उनको ये खूनी लिबरल्स कह रहे हैं कि भाई तुम कौन हो ये करने वाले, तुम्हें नहीं पता ये कौन है, ये मुनाफिकत ना करो। ये तो इस्लाम में तो इस बात की गुंजाइश ही नहीं है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो आप उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप यानी ये खूनी लिबरल्स को ये लगता है कि जिस तरह के वो हैं सारे वैसे हो जाएं। तो ये आप थोड़े से लोग हैं, और आपका पाकिस्तान में ना मंजन बिकता है ना चूरन बिकता है, इसलिए आप सारे पाकिस्तान से भागे हुए हैं। और जिन मुल्कों में आप भागे हुए हैं वहाँ पे आपको टुकड़े मिलते हैं अगयार से, टुकड़े जैसे हम कुत्ते को खाना डालते हैं ना, टुकड़े मिलते हैं छोटे छोटे। वो टुकड़ों के ऊपर आप वहाँ पे पल रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर भौंकने की ड्यूटी कर रहे हैं। आप अपनी ड्यूटी करते रहें और हम आपको एक्सपोज करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और नाज़रीन अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।